Good morning, students. Today we will read this poem, Ode on Solitude. Ode on Solitude. तो ode is a type of poem. Ode कविता एक प्रकार की कविता है. Ode क्या है? एक कविता है. So ode is a poem. Ode on Solitude. ठीक है. So ode on Solitude. Solitude means loneliness. Loneliness मतलब being single, alone. Whenever a person is alone, he is feeling loneliness. That is called solitude. So ode on solitude, अकेलेपन, एकांत के विषय में गीत. एकांत का गीत, ये एकांत के विषय में गीत है. सॉलिट्यूड के विषय में लिखी गई कविता है. सो ओड ऑन सॉलिट्यूड बाय Alexander Pope. Alexander Pope has composed this poem, Ode on Solitude. We are going to read this today. So, I have already made many videos for standard 10th also, for all the classes, almost all the classes after 6th, NCERT book and Bihar board also. So, please go through my playlist if you want to see something more, because in my playlist you will find out the grammatical items also. Grammatical items you will get in my playlist, so please go there, and if you find them useful for you, you should subscribe my channel, and if you will need something more, you may put it in the comment box. From there I will get your demand and so make new videos for you. So subscribe and see. Ode on Solitude, Alexander Pope. Alexander Pope has written this poem. About him we will read that he was born in 1688. 1688 it was his birth year. 1744 was his passing day. Was one of the greatest satirists of the early 18th century. सटायरिस्ट का मतलब होता है व्यंग्यकार. इन हिंदी इट इज कॉल्ड व्यंग्यकार, व्यंग्य करने वाला. व्यंग्य का मतलब समझते हैं, व्यंग्य किसी के विषय में मजाक करना, कमेंट करना. सो ये सटायरिस्ट हुए थे अपने समय के, सटायर लिखते थे. सटायर मतलब व्यंग्य. सो अलेक्जेंडर पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट satirists of the early 18th century. Early 18th century was his span, and during that period he wrote many poems. He was called a satirist. Satirist means व्यंग्यकार. After that he was also a critic. critic का मतलब होता है आलोचना करने वाला. साहित्य में, लिटरेचर में, in literature the position of critics are very high. The positions of critics are very high. क्रिटिक लोगों का, आलोचकों का स्थान साहित्य की दुनिया में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वे दूसरों की आर्ट पर अपना विचार देते हैं, उसके माइनस और प्लस पॉइंट्स को बताते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव पर कमेंट करते हैं, और इन दिस वे दे criticize the piece of art, and so they put the right place, provide the right place for a certain work of art. जो कलाकार होते हैं, क्रिटिक होते हैं, आलोचक होते हैं, वो कलाओं की आलोचना करके उसके लिए सही जगह की तलाश करते हैं. सो द roles of critics are very very important. You cannot read any literature without criticism. बिना आलोचना किए हुए आप कोई चीज़ पढ़ नहीं सकते हो. लिटरेचर में क्रिटिकल एटीट्यूड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है. सो योर एटीट्यूड मस्ट बी क्रिटिकल. बट ही इज रिमेंबर्ड chiefly as a satirist, but mainly, chiefly means mainly he is रिमेंबर्ड, वो याद किए जाते हैं मिस्टर अलेक्जेंडर पोप एज ए सटायरिस्ट, व्यंग्यकार के रूप में. दिस वेन ऑफ हिज पोइट्री
इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रेप ऑफ द लॉक। ये जो नॉर्म है NORM, ये क्वालिटी कहिए, धारा कहिए, दिस वेन मैंने दिस क्वालिटी, दिस ट्रेंड, ये जो प्रवृत्ति है उनकी कविता की, वो दैट इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक इज अ बुक, एंड इन दैट बुक यू विल फाइंड आउट द रियल नॉर्म्स, रियल टेंडेंसी ऑफ द पोएट Alexander Pope. The Dunciad is another work, and the Epists ये आपको एक और किताब है, that is written by Alexander Pope. Two of his other famous works are Essay on Criticism. Essay on Criticism और किताब है उनकी लिखी हुई, and Essay on Man, ये सारा बुक्स है उनका जिसको उन्होंने लिखा था। सो ओड इज अ पोएम एड्रेस्ड टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। ये ओड है, ओड इज अ पोएम, ये किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। ओड इज अ पोएम एड्रेस्ड टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। द ग्रीक वर्ड ओड word has been taken from Greece. Actually it is a Greek word. So ode meant a choric song generally accompanied by dance. ये प्रायः समूह में गाया जाता है, ग्रुप में, कोरिक सॉन्ग, और इसके साथ डांस भी होता है। द टर्म इज प्रेजेंटली यूज टू रेफर टू लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक पोएम्स। ये जनरली दिस ओड इज ए लॉन्ग पोएम, इट इज मेडिटेटिव लिरिक, ये विचारात्मक, विचार करने के लायक, ये थॉटफुल, इसमें थॉट होते हैं, आइडियाज़ होते हैं। दैट इन डिग्निफाइड मैनर एड्रेस ए नोबल सब्जेक्ट, ये किसी हाई क्लास के सब्जेक्ट को एड्रेस किया जाता है। नोबल सब्जेक्ट उच्च स्तर का सब्जेक्ट होता है। इन द प्रेजेंट पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट draws a beautiful picture of a happy man. So in this poem we will find out who can be called a real happy man. सही माने में खुश व्यक्ति कौन है, किसको कहा जाए कि he or she is a happy. So about that the answer will be given here in this poem. So there are two questions. How many of you want to be happy? आप में से कितने लोग हैं जो खुश होना चाहते हैं? What leads to happiness? So answer will be very easy, that all of us want to be happy. And what leads to happiness? ज़िंदगी में खुशी कैसे आती है, इसका आंसर लिखिए आप। तो happiness is brought when we get mental satisfaction. And when do we get mental satisfaction? So we get mental satisfaction when we get the result according to our hope, right? What makes our life happy? Money or contentment or both? In life people say that contentment is most important thing, but generally contentment comes when we get enough money. ये both are applicable, both are needed in a successful life. So money and contentment both are important to make our life a happy one. ज़िंदगी खुश हो, इसके लिए पैसा भी हो और उसके साथ साथ संतोष भी हो, तभी आपका लाइफ खुश होगा। So now we will read this poem line by line. How you ever visited a remote village adorned with natural beauty and a capital town full of skyscrapers? Have you? अगर आपने चमचमाती हुई रात में किसी शहर की राजधानी को देखा है, या किसी प्राकृतिक छटा से सुसज्जित किसी गांव को देखा है, विच वन वुड यू लाइक एंड व्हाई? तो चमचमाती हुई शहरी ज़िंदगी, वो चमक दमक से भरा हुआ शहर या देहाती गांव, किसको आप ज़्यादा अच्छा मानते हो?
This answer will be yours own. Please take care that writer is not forcing you to follow his or her idea. Your ideas must be your own. Only you have to read the poem to get the information, get the ideas of the poet about the concerned topic. ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बात को पोइट के साथ हाँ में हाँ करके माने। आप नहीं भी मान सकते हैं, आप बिल्कुल अलग आइडिया रख सकते हैं। एंड इफ़ योर आइडियाज़ आर कम्प्लीटली डिफरेंट देन ऑल्सो you may get full marks in the examination, because it is your privilege to be with the poet or not with the poet. आप कवि के साथ हों, कवि के विचार को माने या न माने ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट what is written in the poem, that is most important from examination point of view. Because in the examination the questions will come and you have to answer on the basis of the fact mentioned in the poem. पोएम में जो दिया हुआ है उसी के आधार पर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर आपको देना पड़ेगा। सो पोएम का लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी है। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर। सो द मेन क्वेश्चन ऑफ द पोएम इज हु इज हैप्पी। दुनिया में सबसे खुश मिजाज आदमी कौन है, कौन सुखी है, यहाँ उसका यह आंसर है। तो हैप्पी द मैन वो आदमी खुश है, हुज विश एंड केयर जिसकी इच्छाएं, जिसकी जीवन की चिंताएं, ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड जिसके पास में माता पिता का दिया हुआ थोड़ी सी ज़मीन हो, कुछ ज़मीन जिसके पास में अपनी ज़मीन है वो आदमी खुश है। कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर जो देहात में रहता है, अपने गांव में रहता है, इन हिज ओन ग्राउंड जो अपनी ज़मीन पर रहता है, हुज हर्ड्स विथ मिल्क जिसके पास में कुछ पशु हैं जिससे उसे दूध की प्राप्ति होती है, हुज फील्ड्स विथ ब्रेड जिसके खेतों में अन्न पैदा होते हैं, हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर जिसके पास में भेड़ बकरियां हैं जिससे उसे कपड़े मिलते हैं, हुज ट्रीज इन समर इल्ड हिम शेड इन विंटर फायर जिसके पास कुछ वन हैं जिन वनों में उसे फल भी मिलते हैं, शेड भी मिलते हैं गर्मी में और विंटर में वुड भी मिलता है। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड वो आदमी ब्लेस्ड है माने खुश है, BLESSED ये ब्लेस्ड है मॉडर्न वर्ड। पहले के ज़माने में ब्लेस्ड की जगह पर ब्लेस्ड लिखाता था, BLEST इसको बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश का वर्ड। ये है वर्ड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। इसको दूसरा वर्ड होता है आर्केइक इंग्लिश, ARCHAIC आर्केइक ये आर्केइक कहते हैं। आर्केइक का मतलब होता है ओल्ड इंग्लिश जो आजकल यूज नहीं होता है। सो ब्लेस्ड के लिए आजकल जो वर्ड है वो है BLESSED ब्लेस्ड। तो ब्लेस्ड कौन है, खुशी कौन है, खुश कौन है, हु कैन अनकंसर्नली फाइंड जिसको कोई टेंशन नहीं है, अनकंसर्न्ड है, ज़्यादा सोचता नहीं है, जो अनकंसर्नली बिना टेंशन के, फाइंड आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे जिसका दिन साल घंटा पूरा जिसका वक्त आराम से स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है, जा रहा है, बीत रहा है, सॉफ्टली अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी न जिसका बॉडी हेल्दी है, स्वस्थ है, पीस ऑफ माइंड जिसका दिमाग शांत है, क्वाइट बाय डे दिन प्रतिदिन जिसका जीवन इस तरह से बीत रहा है जिसके पास अपने खेत में खाने के लिए अन्न है, पेड़ है छाया के लिए, लकड़ी के लिए, फ्यूल के लिए, जिसको कपड़ा अपने पशुओं से मिल जाता हो, जो दूध अपने पशुओं से प्राप्त करता है, कुछ खानदानी ज़मीन है, पैतृक ज़मीन हो पैटर्नल,
तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं कि वे खुश हैं। तो अब इसके लिए क्वेश्चन क्या है, तो हु इज है हैप्पी मैन। तो ए हैप्पी मैन इज ही हु हैज सेल्फ डिपेंडेंस, जो अपने ऊपर निर्भर है। हु हैज सेल्फ लैंड, ओन ग्रेन, ओन फ्रूट, ओन वुड, ओन क्लॉथ, हु इज रियली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स। वो डिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट है, जो स्वतंत्र है अपने जीवन की ज़रूरतों के लिए, जिसके पास में अपनी ज़मीन है, अपना मकान है, अपने ही खेतों से जिसको खाने की व्यवस्था हो जाती है, जिसको अपने ही पशुओं से कपड़े प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों को माना जाता है कि दे आर कॉल्ड हैप्पी मैन। सो ए हैप्पी मैन इज एन इंडिपेंडेंट मैन who is capable to eat, wear and carry on his days without any tension, who is healthy, who does the pronoun his in his third line of the first stanza refer to, third line of first stanza। ये फर्स्ट स्टेंजा देखिए, थर्ड लाइन, कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, हिज मीन्स ह्यूमन बीइंग, वह मनुष्य जो गांव में रहता है उसके लिए ये हिज का प्रयोग हुआ है। हु गिव्स हिम मिल्क, एनिमल्स गिव हिम मिल्क, व्हाट गिव्स हिम ब्रेड, ग्रेन, लैंड, ही गेट्स ब्रेड फ्रॉम हिज लैंड, फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लॉथ्स, he gets his clothes from his animals like sheep, how do trees help him, trees give him fruit, shade and fuel। Then next part of the poem, sound sleep by night, study and ease, जिसको रात में अच्छी नींद आती है, साउंड स्लीप का मतलब है अच्छी नींद, बाय नाइट, स्टडी एंड ईज, जो अध्ययन करता है और आराम से रहता है, टुगेदर मिक्स्ड, और इस प्रकार से स्वीट रिक्रिएशन करता है, वह कुछ रिक्रिएशन भी करता है, रचना करता है। ह्यूमन बींग्स से ये होप किया जाता है, आदमी से उम्मीद की जाती है कि वो रिक्रिएट करेगा, जैसे उसे प्रकृति ने बहुत कुछ बना करके दिया, ये सुंदर सजाई प्रकृति नेचर मिला है इंसान को, किसी ने क्रिएट करके दिया है उसे, तो ये आदमी का भी फर्ज है कि वो रिक्रिएशन करे। लेकिन रिक्रिएशन करने में लाइफ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी के कारण उसे रिक्रिएशन करने में बाधा होती है। तो जो आदमी संतुष्ट है, जिसको सब कुछ है, वो आराम से मधुर मधुर नव गीत गाएगा, रिक्रिएशन करेगा। वह बैठकर नहीं रहता, रिक्रिएट करता है, कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लिखता है, पढ़ता है, सोचता है, बनाता है। एन इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, और वो आदमी कैसा होगा, वो इनोसेंट होगा। सच पीपल विल डू नो मिस्टेक, रियली इट इज सेड दैट ऑल क्राइम्स बिगिन विथ ब्रेड एंड एंड विथ ब्रेड। तो ये रोटी के साथ सारे अपराध शुरू होते हैं और रोटी के साथ ही समाप्त होते हैं। ये रोटी गोल बनती है, मनुष्य का जीवन रोटी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, वह ज़रूरतों के साथ ही पैदा होता है और ज़रूरतों की पूर्ति करते करते ही मर जाता है। तो जब आदमी के पास में संतोष होगा, सब कुछ होगा, तो वह इनोसेंट होगा। इनोसेंट मतलब निर्दोष होगा, कोई पाप नहीं करेगा, कोई अन्याय या अत्याचार नहीं करेगा। विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, हिज इनोसेंस विल बी मिक्सड विथ मेडिटेशन। वह चिंतन करेगा, बड़े बड़े विचार सोचेगा, प्रकृति की महानता के विषय में सोचेगा, वह अपने अदर ह्यूमन बींग्स के लिए क्या कर सकता है इसके विषय में सोचेगा। सो इनोसेंस विल बी मिक्सड अप with meditation
and in this way that human being will be able to recreate himself. Thus let me live unseen. इसलिए पोइट बोला कि ऐसी भीड़ भरी दुनिया से क्या मतलब, हमें अनसीन रहने दो, अननोन रहने दो। मुझे जान पहचान करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग मुझे देखें इसका भी शौक़ नहीं है। अनसीन रहो, रह जाने दो, अननोन अननोन अनजाना। दस अनलमेंटेड लेट मी डाई, मैं मरूं, बहुत सारे लोग मेरे लिए लमेंट करें, पश्चाताप करें, ये ज़रूरत नहीं है। लेट मी डाई अनलमेंटेड, कोई रोने वाला न रहे मेरे नाम पर, तो वह भी ठीक ही है। पोएट इज सेइंग दिस, ये भीड़ भरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जीवन में शांति तब मिलेगी जब एकांत होगा, जहाँ गांव होगा और जहाँ पीस होगा। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, और मेरे मरने के बाद जहाँ मेरी कब्र बनेगी, कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ कोई स्टोन लगा करके मेरा नाम लिख दे कि मैं ये था, मैं वो था और मैं मर गया, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये और डेट ऑफ डेथ ये। नो नीड ऑफ दैट। मतलब द पोएट इज सिंगिंग द सॉन्ग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, अकेलेपन, एकांत के विषय में एक कविता है। एलोन रहने पर क्या फील होता है व्यक्ति को, ये पोएट ने फील किया। एंड ही वांट टू लिव एलोन, ही फील्स द बून ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का वरदान, एकांत का वरदान यह है कि उसमें शांति रहती है, पीस रहता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आदमी के पास सब कुछ हो, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, होम and all the needed things of life. If a person has, then he or she will be able to recreate and meditate and get the status of innocence. And then if all these things are possible in being alone, then the poet is ready to die unseen, unknown and unlamented. So he wants to steal from the world, दुनिया से चुपके चुपके चला जाना वो चाहता है। उसकी इच्छा नहीं है कि मेरे कब्र पे कोई बड़ा पत्थर लगा दिया जाए जिससे मेरी पहचान अमर हो जाए। नो 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 प्रॉब्लम इन नेचर। आदमी पोएट ऐसा जीवन जीना चाहता है जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, चुपचाप अपनी ज़िंदगी जिए और यहाँ से चला जाए। कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगाए, ये धुआं पैदा करे, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करे, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पैदा करे, ये भीड़ पैदा करे, शहर बनाए और बीमारियों का अंबार लगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं। ही वांट्स टू लिव पीसफुल, ही वांट्स टू लिव इन विलेज, ही वांट्स टू बी सफिशिएंट। व्हाटएवर, जो कुछ भी उसके पास है उसी से वो संतुष्ट होना चाहता है। वो ये दिस इज द कैरेक्टर ऑफ दिस पोएम, दिस इज द सॉन्ग ऑन सॉलिट्यूड। ये सॉलिट्यूड मतलब एकांत के विषय में यह गीत है, यह कविता है। मैंने आपको पढ़ाया। आई फील दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द पोएम। इफ देयर इज स्टिल सम प्रॉब्लम, देन यू विल पुट योर डिमांड इन द कमेंट बॉक्स। From there I will get your demand and make other videos according to your need, because it's my moral obligation to fulfill your needs, because I have made the video to make you benefitable. आपको benefit हो, video should be beneficial for you, for that your advice, your need is important, and please put that in the comment box. From there I will understand your problem. So name the poem and the poet. Alexander Pope is the name of the poet, and the name of the poem is Ode on Solitude. Who is a blessed man? ये आप इसमें से खोज के देखिए कि who is a blessed man. You can find yourself. तो ये blessed कौन है? Who is blessed is he who is unconcernedly finding hours, days and years sliding softly away.
in health of body, peace of mind, quietly by day. This is. Then next question, how does a happy man spend his time? A happy man spend his time easily, does study, lives peacefully, does recreation, and lives an innocent life. In this way, he spends his life. Who does me refer to in the last stanza? Me means the poet. This me has been has been used for the poet. What do you mean by slide soft away? Slide soft away means to go, means going softly without any tension. If you are able to live your life, it means that your time is sliding softly away. So your time is sliding softly away, so you are a happy person. What does the poet wish for after death? पोएट अपनी मौत के बाद क्या विश करता है? The poet wishes that no stone should be laid to make him immortal. कोई पत्थर लगाने की जरूरत नहीं है अमर बनने के लिए. How does the poet want to live? The poet wants to live a peaceful life, a contented life, an independent life, a life which is having all the needed things of life, all the needed things of a simple life and high thinkable life. And so the poet wants live peacefully without creating any problem for anyone. How does the poet want to die? The poet wants to die as a peaceful person. He did not want to get name and fame. He does not want to create a huge crowd. No, he wants to live peacefully and die peacefully. He does not need anything after his death to be put as a stone at his graveyard, on his graveyard. So, ये last stanza, let him live unseen, unknown, unlamented, steal from the world and not a stone tell where he lied. वह कहाँ सोया, कहाँ मरा, किस कब्र में दफन हुआ, कोई न जाने तो अच्छा है. What are the features of a happy life? So the answer of all these questions will be the answer of this question. पूरे पोएम का समरी ये 9 का आंसर है. I think my friend that now you will be able to write the answer. इस नंबर 9 का क्वेश्चन का आंसर अगर आप पूरा पोएम का समरी लिख दो तो आपका आंसर सही हो जाएगा. और ये 9 नंबर क्वेश्चन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है. ये 9 VVI. Then come in this next question we will see here. The poet thinks that those who are content with what they have are happy men. Do you agree? पोइट का कहना है, पोइट सोचता है कि जो उनके पास जो कुछ भी है उससे वो संतुष्ट हैं तो हैप्पी हैं. आप सहमत हैं इस बात से? तो आपको सहमत होना चाहिए. बिकॉज वॉट एवर यू हैव नेचर हैज गिवन यू दैट इज सफिशियंट फॉर यू. इफ यू आर द फॉलोअर ऑफ गॉड देन वॉट एवर गॉड हैज गिवन you should accept that as a complete thing. But it is a problem of human beings that they are never satisfied with whatever nature has given them. They want to make progress, and for that they create all the problems. They disturb the environment. They create crowds, and they create diseases. They bring tension, and so I feel that the person who is content with what they have, they are really happy men. What does the speaker mean by together mixed? Sweet creation can be things to be mixed. Have you ever tried to do so?
क्या आपने ऐसा किया है? नहीं। ये तभी संभव होगा वेन एवर यू आर ए हैप्पी मैन, वेन एवर यू आर ए सक्सेसफुल मैन, when you are having all the needed things of your life. First of all, you should be satisfied, then you will be able to do recreation, to do writing, to do creating, to create something. If you are having difficulty, then it is not possible for you to create. You should get the needed things of life first, then get satisfaction, then you will be able to do sweet recreation. So these things are really mixed up. Nothing is alone. So interdependence, here we can use the word. Why does the poet want to live and did stealthily from the world? ये ऊपर का क्वेश्चन का आंसर मैंने किया, उसको लिखिए, इसका आंसर हो जाएगा. Is the title of the poem justified? Yes, the title of the poem is justified. एकदम justified है, सही है poem का title, because the whole poem is about the importance of सॉलिट्यूड. और अगर कोई दूसरा बताना है, बता सकते हैं कि बीइंग एलोन, लोनली लाइफ, इस पर ये भी हो सकता है पोएम का टाइटल. तो अकेलेपन के विषय में कविता है. ग्रुप डिस्कशन करें आप इस पर. आर यू हैप्पियर देन आवर फोर फादर्स? अपने पूर्वजों से आप खुश हैं ज़्यादा कि नहीं हैं? तो फिर इस पर जो कहना है सो कहिए. इज विलेज लाइफ बेटर देन सिटी लाइफ? ये सब आपको करना चाहिए, अपने से लिखना चाहिए, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज. वैसे एग्जामिनेशन के समय तक मैं अपने तरफ से भी इस पर लिख करके एक वीडियो बना दूंगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा. राइट ए लेटर. लेटर लिखना है आपको. ब्रदर सिस्टर लिविंग इन पटना अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है, इस पर लेटर लिखिए. द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, इस पर पैराग्राफ लिखना है आपको. देन कम वर्ड स्टडी, इसको करेंगे. पैटर्नल, ये करेक्ट करना है स्पेलिंग आपको पहले, तो ये करें. पैटर्नल में ए गो टी होगा, PAT, डबल टी दिया है, इसमें आप एक टी करें, PATERNAL. ठीक है, डबल टी गलत है, ए गो टी होगा, सिंगल टी होगा. तो PATERNAL. ब्रेथ, BREATHE, इसमें आप ई लगावें, और BREA, डबल ई जो है बीच में ये गलत है, तो BREATHE, ये इसका सही हुआ, आप लिख लीजिए कलम से. अटायर, ATTIRE. अनकंसर्नेडली, ये ठीक है, UNCONCERNE होगा, यहाँ ए जो दिया है ये गलत है, ए की जगह पर ई करें, EDLY. इनोसेंस में डबल एन होगा, INN, और सब सही है. अनलेमेंटेड में LAMENT दिया है, एल के बाद में ई है जो गलत है, LA करना है, और सब सही है. आफ्टर दैट ये नीचे वाला हम लोग देखते हैं कि अब क्या है. ये D2 एक्सरसाइज 1, और इसमें आपको इस वर्ड को फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है. ए मेजरमेंट यूनिट एकड़, ACRE, इसमें लिखेंगे ACRE, एकड़, ये एकड़ हो गया. एकड़. ड्रेसिंग क्लोथिंग अटायर, ATTIRE, जो ऊपर में है ATTI. ठीक है. ED, तो ये अनलेमेंटेड. ठीक, अनलेमेंटेड दिया हुआ है वर्ड, अनलेमेंटेड, LAMENTED, अनलेमेंटेड. और ये पैटर्नल, इसमें PATERNAL, PATERNAL, पैटर्नल. और इंडिफरेंटली मतलब अनकंसर्नडली ऊपर वर्ड है ना ये वाला, तो UNCO, यही वर्ड यहाँ लिखाएगा, NEDLY करके. ठीक है, ये आपका हुआ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स अगेन. आई डिड नॉट गेट ए साउंड स्लीप, ये 1 कहिए इसमें, 1. शी फाउंड पीस थ्रू योगा एंड मेडिटेशन, ये 2. थर्ड नंबर में आपको मिस्टर झा ले बैक एंड enjoyed the
पीस, ये थर्ड, पीस ऑफ द समर इवनिंग। देन मिस्टर सिन्हा इज कंटेंट फॉर, और तब नीचे वाले 5 में ये 5 कर देंगे, नेटिव 5 हो गया। ये आपका मैंने किया। अब आपको नीचे वाला देखिए, ये आपको ग्रामर का प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के लिए मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, जो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, गो थ्रू माई प्ले लिस्ट, फ्रॉम देयर यू विल गेट डिटेल स्टडी ऑफ प्रीपोजिशन। सो प्लीज सी माई वीडियो अबाउट प्रीपोजिशंस, go through my playlist, there you will find it, and here I am going to fill in the blanks for your help। तो वहाँ पर जाएंगे तो उस वीडियो में मेरा पूरा प्रीपोजिशन पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और इसमें मैं फिल इन द ब्लैंक्स कर देता हूँ आपके लिए। तो ही वाज नॉक डाउन बाई बस, इसमें भरेंगे बाई, ठीक है, इसमें भरना है बाई, बाई, और इसमें भरेंगे फ्रॉम, फ्रॉम। व्हाट इज मेड ऑफ, व्हाट इज इट मेड ऑफ, ठीक है, ऑफ भरेगा यहाँ। यस्टरडे आई हैड एन आर्गुमेंट विथ मिस्टर सिन्हा, विथ, एंड इट टुक अस एन आवर टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट, ठीक है। After that, I feel that I have done all the things for you. Now also something is left. तो यहाँ भरना है आपको ब्यूटी के लिए क्या चाहिए, राइमिंग वर्ड। जैसे केयर के लिए एयर है, मैंने बोलने में एक जैसा, केयर तो एयर, अंतिम साउंड एक तरह का निकला, बाउंड, ग्राउंड। तो ब्यूटी के लिए, तो ब्यूटी के लिए ड्यूटी, ब्यूटी ड्यूटी। इस तरह से पोएम में आप देखिएगा एक एक लाइन छोड़ करके वर्ड, लास्ट वाला वर्ड मैचिंग है, वो खोज के आपको लिखना है, जिसको कहते हैं राइमिंग वर्ड। जैसे अंतिम सेंटेंस पोएम का आप देखिए तो ये आपको मिलेगा कि एक ही तरह का है, जैसे ईज, स्लीप, साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर, ईज प्लीज, रिक्रिएशन, मेडिटेशन। एक तरह से बोलने के लिए साउंड अंतिम जैसा निकलता है वर्ड का, वो तो ईज, प्लीज एक ही तरह का है, रिक्रिएशन, मेडिटेशन उसी तरह से। नेक्स्ट वाले को देखिए, तो ये आपको ये नोन, स्टोन, डाई, लाई, इसको कहते हैं राइमिंग स्कीम। पोएम लिखने के लिए इसका ध्यान दिया जाता है। तो ये राइमिंग स्कीम इसका ए बी है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आई थिंक दैट आई हैव डन work for you. Again some questions are left, I am going to do that। ये नीचे वाला ये आपको बच गया ट्रांसलेशन। देखिए, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, वह आदमी खुश है जिसका विश, जिसकी इच्छा और चिंता। ये फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, जिसको अपनी ज़मीन से उसकी इच्छाएं, वह आदमी खुश है जिसको अपनी ज़मीन से इच्छाएं और चिंताएं संपूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। वह आदमी खुश है जिसकी इच्छाएं और चिंताएं उसकी ज़मीन से ही पूर्ण होती हैं। ए बाउंड, बाउंड। कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, जो अपने गांव से ही संतुष्ट है। नेटिव एयर मतलब देहात, जहाँ रहता है, अपनी मातृभूमि से ही जो संतुष्ट है। कंटेंट मतलब संतुष्ट। इन हिज ओन ग्राउंड, जो अपनी ही ज़मीन में, अपनी ही सराउंडिंग में रह करके संतुष्ट है, वो आदमी अच्छा है। ये है, ये मैंने आपको किया, और मैं समझता हूँ कि आई हैव डन एवरीथिंग ऑफ दिस पोएम फॉर यू। सो प्लीज़ कीप ऑन व्यूइंग, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।